सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर यस, मुझे भी नहीं आ रही है। यस सर, मुझे भी नहीं आ रही है। Am I audible now? यस सर। Okay. यस सर। Okay then. So there is a chat box. You might be वहाँ पे डाल दिया करो मैसेज तुम लोग, ठीक है? Anyway. So I was talking about Miss yesterday we left here, so we'll be starting from here itself. So what I was talking about is, and the basic assumption, we assume that every transaction preserves the consistency of the database, and since each transaction preserves the consistency of database, therefore every serial execution of this transaction will also preserve the consistency of the database. So means along with the assumption, so I can say and that if there is a concurrent schedule and I can prove that this schedule is uh, equivalent to a serial schedule, then we can say that the given schedule is a serializable schedule. So a schedule is serializable if it is equivalent to a serial schedule. So depending upon these there are two types of equivalence. The first equivalence is what I do, and whatever transactions are participating in the schedule, say T1 and T2 are the two transactions participating. So what I try to do is I try to swap the relevant positions of non-conflicting instructions. That will see what a non-conflicting instruction means. So if I try, what I do, I try to swap or move the positions of non-conflicting instructions and try to get a serial schedule. If I am able to do so, so such a situation is called a conflict serializable schedule. And another method is we try to ensure that whatever the two schedules are, they produce the same state. That means the final view produced by the different schedules are same. In that case also we say that the schedules are equivalent to each other, and such a situation is called a view serializable schedule. So we will see both of these in detail today. So first of all, means yesterday I talked about this simplified versions. So what I do hereafter, we'll be representing a transactions only in terms of its reads and write operations. Intermediary operations like processing and calculations, they are being ignored for here for simplicity purpose. And then we assume that these arbitrary computations or intermediary computations are done by the transactions on temporary variables. So every transaction hereafter will be represented only in terms of read and write operation, just to simplify the appearance of the algorithms we are going to discuss. So before moving into a conflict serializability or view serializability, just let's first discuss what do we mean by conflict instructions. So a conflicting instruction, any instruction which whose position cannot be changed or interchanged because their sequence matters into the output of the instruction, output of the transaction. That means if there are two instructions, say read q operation and write q operation on the same data, but these instructions come from two different transactions, T1 and T2. So read q is executed first, means this T1 will get a value of q which was earlier, previous value, and write q will write a new value after read q is done. But if I try to change the position, what I do, I try to execute the write q of T2 first and read q of T1 next. Then what will happen, read q will now get the new value produced by write q of T2. So such type of instructions where their execution sequence matters a lot, they are critical, such type of instructions are called conflict instructions. और ये instructions को अगर हम define करना चाहें तो सबसे पहले we take two instructions I and ij. So these are the two instructions we are talking about, and what we say, I belongs to transaction Ti and ij belongs to transactions Tj. So I is an instruction from Ti and ij is an instruction from Tj. Now these two instructions will be conflicting instructions if
देयर एग्जिस्ट सम डेटा आइटम क्यू, एक ऐसा डेटा आइटम क्यू है जिसको दोनों ही एक्सेस कर रहे हैं, आई एंड आई जे, both of the transaction instructions are accessing and at least one of them is a write queue operation. तो पहली चीज ये देख लो, हम क्या कह रहे हैं, हम दो इंस्ट्रक्शंस ले लेते हैं, एक आई से और दूसरा आई जे। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखते हैं कि आई इज अ ट्रांजेक्शन ऑफ टी आई, इंस्ट्रक्शन ऑफ टी आई, एंड आई जे इंस्ट्रक्शन ऑफ टी जे। एंड ऑल्सो वी मस्ट एंश्योर दैट, यहां लिखा नहीं है मैं बता दे रहा हूं, that I should not be equal to j. That means I and ij cannot be instruction of the same transaction. They must be instruction of two different transactions. Then only they can be conflicting. If they are instruction of the same transaction, obviously उनका sequence वही रहेगा हमेशा. So we can't change the sequence of instructions of a program. So in this case, we ensure that I and ij, they belong to two different transactions, and these two instructions will be called as conflicting instruction only if they are working on the same data item, एक ही data item पे काम कर रहे हैं, और दोनों में से एटलीस्ट एक राइट क्यू ऑपरेशन है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आई इज अ रीड क्यू एंड आई जे इज अ राइट क्यू, that means they are not conflicting instructions, because read operations on the same item by different instructions can be allowed, because read is not going to change the value of the data item, and therefore no conflict will arise. They will simply read. It is simply like I put a notice on the notice board, so everybody who is able to see that notice board can read the item. But if I say I give a register to somebody, and I ask somebody to read it and I ask somebody to update it, so they cannot do simultaneously, because द रीडर अगर पहले रीड करेगा तो उसको ओल्ड वैल्यू मिलेंगी, अगर बाद में रीड करेगा तो उसको राइट वैल्यू। तो इनका ऑर्डर मैटर करता है। लेकिन आई और आई जे अगर दोनों रीड ऑपरेशन है, तो पहले कोई भी रीड करे और बाद में कोई भी रीड करे, वैल्यू चूंकि चेंज नहीं हो रही है, तो दोनों को हमेशा सेम वैल्यू मिलेगी, तो किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। देयरफॉर if I and ij are two different instructions of two different transaction, and they both of them are working on the same data item, and both of them are read queue operation, the instructions are non-conflicting instructions. Similarly, in this case, you see one of them is a write queue operation, here also one of them is a write queue operation, and here also both of them are the write queue operation, and therefore these instructions are conflicting instructions. Similarly, if I is a read P item and ij is a write Q item, in this case also both of these instructions are non-conflicting, because they are not working on the same data item. ठीक है ना। तो if I am reading a value of P and somebody else is writing the value of Q, I am not concerned whether I am being executed before this or after this, because it is only changing a value of Q, it is not changing the value of P. So किसी भी ऑर्डर में P की वैल्यू चाहे इससे पहले रीड करूं या इसके बाद रीड करूं, P की वैल्यू हमेशा मुझे वही मिलेगी। सो दो केसेस में इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं। पहला केस अगर दोनों सेम डेटा आइटम पे काम कर रहे हैं लेकिन दोनों ही रीड ऑपरेशन है तो वो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग होंगे। दूसरा केस, चाहे वो कैसे भी ऑपरेशन हो, चाहे वो रीड हो चाहे राइट हो या कॉम्बिनेशन ऑफ रीड राइट हो, अगर वो दोनों इंस्ट्रक्शंस दो अलग अलग डेटा आइटम्स पे काम कर रहे हैं तो भी वो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस होंगे। ठीक है ना। अब कॉन्फ्लिक्ट होने से होता क्या है, अगर दो इंस्ट्रक्शंस कॉन्फ्लिक्टिंग हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इनका आपस का ऑर्डरिंग चेंज नहीं हो सकता। दैट मींस अगर आई पहले आ रहा है और आई जे शेड्यूल में बाद में आ रहा है, तो ये ऑर्डर हम कभी भी नहीं चेंज कर सकते। किसी भी सिचुएशन में हम आई जे को आई से पहले नहीं कर सकते। ठीक है ना। सो कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन होने का मतलब आई कैन नॉट स्वैप द पोजीशन ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस। ठीक है ना। सो इफ आई एंड आई जे आर कॉन्जिक्यूटिव इन शेड्यूल and they do not conflict, their results rule remains same even if they have been interchanged in the schedule. For example, अगर मान लो मेरे पास read queue है और इसके बाद राइट क्यू है, सॉरी रीड क्यू है फिर से दूसरे ट्रांजेक्शन में,
ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव हैं। कॉन्जिक्यूटिव करने का मतलब ये एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके जस्ट बाद ये वाला एग्जीक्यूट हो रहा है। दोनों अलग अलग ट्रांजेक्शन के हैं, दोनों सेम डेटा आइटम पे काम करते हैं, लेकिन दोनों रीड ऑपरेशन है, इसलिए नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसको पहले एग्जीक्यूट करूं या इसको पहले एग्जीक्यूट करूं, मेरे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं आएगा। तो मैं अगर जरूरत पड़े तो मैं रीड क्यू को नीचे और इस वाले रीड क्यू को ऊपर भी ले जा सकता हूं। सो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग के केस में कंसेक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस के पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द फाइनल रिजल्ट। सिमिलरली अगर ये रीड पी है और दूसरे ट्रांजेक्शन का जो इंस्ट्रक्शन है जो जस्ट इसके बाद आता है वो राइट क्यू है, तो अगेन इनकी ये नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग है। ये पहले एग्जीक्यूट हो या पहले एग्जीक्यूट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्यू को एक्सेस कर रहा है, ये पी को एक्सेस कर रहा है। तो अगर जरूरत पड़ी तो मैं रीड पी को यहां कर सकता हूं और राइट क्यू को ऊपर ला सकता हूं एग्जीक्यूशन सीक्वेंस में। सो this is what is the benefit, or this is what we intend to do. So we come on to the conflict serializable. So what I do, if S is a schedule which is concurrent in nature, and what I do, I can transform this S into a S dash by a series of स्वैप्स ऑफ नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस। जो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस हैं उनके पोजीशन को स्वैप करते करते मैं इस एस को यदि एस डैश में कन्वर्ट कर दूं तो हम कह सकते हैं कि एस और एस डैश दे आर कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू ईच अदर, दे आर conflict equivalent to each other. Here I have not said whether this S dash is a serial schedule or not. Any schedule, अगर S एक शेड्यूल है और इसके इंस्ट्रक्शंस को नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस की पोजीशन को मैं चेंज करके एक नया शेड्यूल बनाता हूं S डैश, तो दो बोथ केसेस में ये दोनों इक्विवेलेंट होंगे, बोथ ऑफ देम विल प्रोड्यूस द सेम डेटाबेस state, that is guaranteed, and such type of equivalence is called conflict equivalence, and the schedules are called conflict equivalent to each other. That means conflict को हैंडल करते हुए दोनों शेड्यूल्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। अब यही S डैश यदि सीरियल शेड्यूल होता है और S कंकरेंट शेड्यूल है तो हम कहते हैं कि S is conflict serializable schedule. So we say that a schedule S is a conflict serializable if it is conflict equivalent to a serial schedule. तो अगर कोई भी कंकरेंट शेड्यूल किसी सीरियल शेड्यूल के कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट हो जाता है तो उस शेड्यूल को हम कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल बोलते हैं। Now we'll take one example. If you see here, we have a schedule S3 here. This is the schedule S3, and then we have a schedule S6 here. So if you see transaction T1 and T2, T1 and T2, names are same. Here also read A, write A, read B, write B. Read A, write A, read B, write B. Here also read A, write A, read B, write B. Read A, write A, read B, write B. So we say that the schedules are having the same set of transactions. So S3 and S6, both of them are having the same set of transactions. Now I have to prove whether this schedule is conflict equivalent to this or not. So इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि क्या हम स्वैपिंग कर सकते हैं। तो इस केस में देखो कॉन्जिक्यूटिव इंस्ट्रक्शन जब भी हम कन्वर्ट करना चाहते हैं बाय स्वैपिंग तो हमें क्या एड्रेस करना है, केवल कॉन्जिक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस को एड्रेस करना है। कॉन्जिक्यूटिव ये दोनों भी हैं लेकिन सेम ट्रांजेक्शन के नहीं, अलग अलग ट्रांजेक्शन के। उनको डिसाइड करना है कि ये दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग है कि नहीं। अगर कॉन्फ्लिक्टिंग है तो उनके पोजीशन को एज इट इज रहने देना है, अगर कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है तो उनकी रेस्पेक्टिव पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो इन दिस केस राइट ए ऑफ T1 एंड रीड ए ऑफ T2, बोथ ऑफ देम आर two instructions which are consecutive. Both of them were working on the same data item A, and one of them is a write A operation. Therefore, they are conflicting instructions and we cannot change the position of them. इन दोनों का हम कुछ नहीं कर सकते. They have to be like this only. So I find out the next one. So next one is write A of T2 and read B of T1. ये दोनों consecutive instruction है। क्यों? क्योंकि इस राइट ए के बाद ये वाला रीड भी एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, सो इन दिस केस व्हाट हैपेंस, इफ यू सी बोथ ऑफ देम आर कंसेक्यूटिव ही, बट बोथ ऑफ देम आर वर्किंग ऑन टू डिफरेंट डेटा आइटम्स। ये बी के ऊपर काम कर रहा है
और ये ए के ऊपर काम कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, बोथ ऑफ देम आर नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग एंड देयरफॉर व्हाट आई कैन डू इज आई कैन चेंज देयर पोजीशन। सो व्हाट आई डू, आई मूव दिस राइट ए फ्रॉम हियर, और इसका एग्जीक्यूशन मैं यहां ला देता हूं, राइट ए। एंड देन व्हाट आई डू, आई मूव दिस रीड बी फ्रॉम हियर, और इसका एग्जीक्यूशन मैं कहां ला देता हूं, यहां ले देता हूं, रीड बी। अब क्या हो गया, अब देखो ये वाला रीड ए और ये वाला रीड बी, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव हो गए। अगर ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव हैं लेकिन दोनों जो हैं दो अलग अलग डेटा आइटम्स पे काम कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं ये वाला पोजीशन यहां ला सकता हूं, रीड ए कैन कम हियर एंड दिस रीड बी कैन गो अप। सो रीड बी कम्स हियर। अब देखो, अब जो कॉन्जिक्यूटिव हैं वो कौन कौन से हैं, ये दोनों हैं, लेकिन इनकी पोजीशन मैं ऑलरेडी चेंज कर चुका हूं तो फिर से नहीं करूंगा। अब क्या है, ये राइट ए है और ये राइट बी है। both of them are right operation, but both of them are right operations on two different data items, and therefore this right a instruction and this right b instruction, they are also non conflicting, और इनकी पोजीशन को मैं चेंज कर सकता हूं। यानी कि राइट ए मेरा यहां आ सकता है और मेरा ये राइट बी जो है वो यहां जा सकता है, ये यहां से यहां जा सकता है। अब जो कॉन्जिक्यूटिव हैं वो कौन से हैं, ये राइट ए मेरे यहां से हट गया, तो अब जो है ये राइट बी और ये रीड ए, अगेन दोनों अलग अलग डेटा आइटम पे काम कर रहे हैं, तो ये रीड ए मेरा यहां आ जाएगा, रीड ए यहां आ जाएगा, और ये वाला राइट बी मेरा यहां चला जाएगा, राइट बी ऊपर। तो अब देखो, by swapping the non-conflicting instructions, what I have done, I have converted this schedule S3 into a serial schedule। कैसे, देखो read A ये इस तरह से आ जाएगा, read A, write A, read B, write B। Here also read A, write A, read B and write B। Now what happens, चूंकि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट इक्वलेंट है, क्यों, क्योंकि मैंने जो प्रोसेस फॉलो किया है, आई हैव ओनली मेड चेंजेस टू द पोजीशंस ऑफ नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस, आई हैव नॉट डिस्टर्ब द पोजीशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस। वो आपस में अभी भी उसी तरीके से हैं। देखो ये राइट ए यहां था और इसके बाद एक रीड ए ऑपरेशन था, वो रीड ए अभी भी उसी के बाद है, इसके ऊपर नहीं आया है। तो जितने भी कॉन्फ्लिक्टिंग थे उनकी पोजीशन को मैंने आपस में रिस्पेक्ट में डिस्टर्ब नहीं किया है, और इसलिए ये शेड्यूल S3 is equivalent to conflict equivalent to S6। Now since S6 is a serial schedule, therefore we can say that S3 is a conflict serializable schedule। S3 is a conflict serializable schedule। इतना क्लियर है, आर यू क्लियर विद दिस? Yes, sir. Okay, so after this we can take another example। अब इस केस में देखो, in this case I am having another schedule। अच्छा इस वाले में एक देख लो, तो ऑब्वियसली क्या हुआ, T1 T2 was a schedule जिसका concurrent execution कैसा था, T1 followed by T2 then again followed by T1 and then again followed by T2। और ये वाला सीरियल वाला क्या है, that is T1 followed by T2। So ये this was a concurrent schedule and this is conflict equivalent to this serial schedule T1 followed by T2। Now what happens in this case, यहाँ पे we are having a schedule and we can say that T3 and T4 are the schedules transactions which are participating in this। अब इस केस में देखो, ये रीड क्यू है, ये राइट क्यू है। So these two are conflicting instructions because both of them are consecutive in nature and both of them are working on the same data item and one of them is a write operation, and therefore these two are conflicting instructions and we cannot change the positions of these two। Same is the case with these two। ये दोनों consecutive instructions हैं, दोनों क्यू पे काम कर रहे हैं और दोनों में से ये दोनों ही write operation है। So write followed by write is also a conflicting instruction। Therefore again I cannot change the position of this।
ठीक है। सो इसके पॉसिबल जो सीरियल शेड्यूल हो सकते हैं, कौन सा हो सकता है? एक T3 फॉलोड बाय T4 और दूसरा T4 फॉलोड बाय T3। तो अगर T3 के सारे रीड क्यू, राइट क्यू और ये T4 राइट क्यू बाद में आएगा, तो फाइनल क्यू की वैल्यू कौन सी होगी? जो ये वाला प्रोड्यूस करेगा। अभी कौन सी है? जो ये प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में जो फाइनल स्टेट आएगा क्यू का, वो इस वाले स्टेट से अलग आएगा, एंड देयरफॉर दीज टू आर नॉट इक्विवेलेंट टू ईच अदर। सिमिलरली अगर T3 देखें तो इस केस में ये आएगा फाइनल ऑपरेशन, लेकिन इसको कौन सी वैल्यू मिलेगी? इसको वो वाली वैल्यू मिलेगी जो ये वाला पढ़ेगा। तो अगेन फाइनल स्टेट विल डिफर, एंड देयरफॉर दिस इज अगेन नॉट इक्विवेलेंट टू दिस, एंड देयरफॉर in this case this is a non conflict serializable schedule। इसको हम conflict serializable equivalent नहीं find out कर सकते, इसलिए इसको हम non conflict serializable schedule बोलते हैं। So another type of serializability is the view serializability। view serializability ऐसा जिसमें हम अंदर क्या हो रहा है, कैसे पोजीशन है, इसको ना मैटर करके हम ये देखते हैं कि डेटाबेस का जो व्यू की रेट हो रहा है वो हमारा फाइनली इक्विवेलेंट है कि नहीं एक दूसरे के। ठीक है। तो दो शेड्यूल्स से S एंड S डैश विथ सेम सेट ऑफ ट्रांजेक्शन, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, एग्जैक्टली इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा आइटम्स। दोनों ट्रांजेक्शन या दो से ज्यादा जो भी ट्रांजेक्शन शेड्यूल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दे शुड बी एग्जैक्टली सेम। ठीक है। एंड वी से दैट the schedule S and S dash are view equivalent to each other if the following three conditions are met। ये तीनों conditions true होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि S और S dash जो है वो equivalent हैं एक दूसरे के, view equivalent हैं एक दूसरे का। वो कब हो सकता है? सबसे पहले अगर मैं शेड्यूल S की बात करूं, फर्स्ट शेड्यूल, तो इसमें अगर TI है जो Q की इनिशियल वैल्यू को रीड करता है, ठीक है ना, तो S डैश में भी TI को ही पहली वैल्यू रीड करनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एवरी डेटा आइटम Q, पहले शेड्यूल में जो ट्रांजेक्शन सबसे पहला रीड क्यू ऑपरेशन करता है, वही ट्रांजेक्शन दूसरे शेड्यूल में भी पहला रीड क्यू ऑपरेशन करना चाहिए। दूसरा क्या कहता है? अगर TI एग्जीक्यूट्स अ रीड क्यू फॉलोड बाई अ राइट क्यू ऑफ TJ, अगर TJ के राइट क्यू के बाद क्या हो रहा है? TI इज रीडिंग अ वैल्यू दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांजैक्शन TJ, यानी कि प्रोड्यूस क्या मतलब हो गया? TJ ने राइट किया होगा। तो अगर TJ के राइट ऑपरेशन के बाद TI का रीड ऑपरेशन आता है इन S1, तो दूसरे शेड्यूल में भी ये सीक्वेंस मेंटेन्ड होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? अगर रीड क्यू of transaction TI is followed या is following right queue operation of transaction TJ in S1, तो ये सीक्वेंस S2 में भी मेंटेन्ड होनी चाहिए या S डैश भी मेंटेन होना चाहिए। और फिर थर्ड कंडीशन, S के अंदर हर डेटा आइटम पे जो ट्रांजेक्शन फाइनल राइट ऑपरेशन कर रहा है, वही ट्रांजेक्शन S डैश के अंदर भी फाइनल राइट ऑपरेशन करना चाहिए हर डेटा आइटम के ऊपर। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, तो हम दोनों शेड्यूल्स को कह सकते हैं कि दे आर व्यू इक्विवेलेंट टू ईच अदर, and if one of them is a serial schedule, then we can say that the next one or other schedule is a view serializable schedule. So if you see here, we have, so any schedule S is view serializable if it is view equivalent to a serial schedule। अगर कोई भी शेड्यूल किसी सीरियल शेड्यूल के व्यू इक्विवेलेंट है तो वो व्यू serializable है। एक चीज हमेशा नोट करना, every conflict serializable schedule will always be a view serializable schedule। ये हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो वो व्यू सीरियलाइजेबल भी होगा, वाइस वर्सा मे और मे नॉट बी ट्रू। ठीक है ना, दैट मींस एवरी व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल मे नॉट बी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल। ठीक है ना। सो इफ वी सी हियर, so this is a schedule
which is view serializable but not conflict serializable. तो इन दिस केस इफ यू सी, तो ये व्यू serializable क्यों? क्योंकि पहला रीड क्यू ऑपरेशन T27 कर रहा है, उसके बाद फाइनल राइट क्यू ऑपरेशन T29 कर रहा है, ठीक है। सो इफ आई राइट समथिंग लाइक दिस, रीड क्यू देन राइट क्यू देन राइट क्यू देन राइट क्यू, तो वो कंडीशन मेंटेन कर रहेगी। इस रीड क्यू से पहले कोई और राइट क्यू नहीं है, तो वो सीक्वेंस सेकंड कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं क्या करूं, केवल इस राइट क्यू को उठा के मैं यहां लिख दूं, तो ये एक सीरियल शेड्यूल बन जाएगा, ठीक है। और तीनों कंडीशन ट्रू है। पहला राइट क्यू ऑपरेशन T27 वहां भी कर रहा था और यहां भी कर रहा है, फाइनल राइट क्यू ऑपरेशन T29 वहां भी कर रहा था और इस वाले केस में भी कर रहा है, और ऐसा कोई सीक्वेंस है नहीं राइट क्यू फॉलोड बाय रीड क्यू, तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। एंड सिंस दिस शेड्यूल इज अ सीरियल शेड्यूल नाउ, एंड द प्रायर शेड्यूल जो दिया हुआ था ओरिजिनली, वो एक इक्विवेलेंट शेड्यूल होगा, व्यू इक्विवेलेंट शेड्यूल होगा इस सीरियल शेड्यूल के, इसलिए हम कह सकते हैं कि उसको व्यू इक्विवेलेंट शेड्यूल, व्यू serializable शेड्यूल है, ठीक है ना। सो व्हाट सीरियल शेड्यूल इज above इक्विवेलेंट टू 27, 28, 29। सो अगर मैं ये देखूं 2027, T28 एंड T29, ये सीरियल शेड्यूल होगा जिसके ये इक्विवेलेंट होगा, ठीक है ना। एवरी व्यू serializable शेड्यूल दैट इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट serializable हैज ब्लाइंड राइट्स। अब ये देख लो, ये कॉन्फ्लिक्ट serializable नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है ना, दोनों ही सेम डेटा आइटम पे काम कर रहे हैं और एक राइट क्यू ऑपरेशन है, तो इनकी स्वैपिंग नहीं कर सकते। ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस हैं, दोनों ही राइट क्यू ऑपरेशन है, ये भी कॉन्फ्लिक्टिंग है। ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव हैं, दोनों ही राइट क्यू ऑपरेशंस हैं, दे कॉन्फ्लिक्टिंग है। यानी कि ये गिवन शेड्यूल व्यू serializable तो है लेकिन कॉन्फ्लिक्ट serializable नहीं है। कोई भी ऐसा शेड्यूल जहां पे जो कि व्यू serializable है बट इट इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट serializable, उसके अंदर ब्लाइंड राइट्स होंगे। ब्लाइंड राइट्स उसको बोलते हैं कि किसी तरह का कोई चेंज नहीं करा, प्रोसेसिंग नहीं करी है, सिंपली राइट कर रहे हैं। तो T28 क्या कर रहा है? सिंपली राइट ऑपरेशन कर रहा है, इसके पहले उसने ना रीड किया है ना कुछ और किया है, सिंपली राइट ऑपरेशन, इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड राइट। सिमिलरली T29 is also only executing a right operation, therefore it is called a blind write। तो जब भी ब्लाइंड राइट आएगा उस केसेस में गिवन शेड्यूल जो है वो व्यू serializable तो हो सकता है लेकिन कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा वो। So this is simpler another notation जहाँ पे कह सकते हैं the schedule below produces the same outcome as the serial schedule T1 T5। तो अगर आप T1 के सारे इंस्ट्रक्शंस एक साथ रख लें और उसके बाद T5 के रख लें, तो जो भी वो फाइनल रिजल्ट प्रोड्यूस होगा वो इसी के बराबर होगा, इसलिए ये शेड्यूल भी T1 T5 के इक्विवेलेंट है। सो I think this is all for today. What is the time? No, we are having some time. Chalo, I think this is all for today. I will discuss for testing for serializability in the next class.